Good morning, my dear students. Once again, welcome back to my online classes. So, students, as you all know, we are completing this story, chapter number 4, in the Kingdom of Fools, and we have covered more than half of the story. In today's video, I would like to complete the entire story so that you can understand and you can learn some lesson from the story. So, without further delay, let's just start. But before starting, I would like to recall whatever we have learned so far. So, as you all know, that this story is about a place where the people and the king and minister, everybody is full. They have like some other kind of things happening in their place. People are sleeping during the day and they are working at night. So one day, our guru and the disciple came to this town and they saw that nobody was there in the afternoon, and later in evening they found that all the markets open. So they discovered that people here are stupid kind of people and they wake up at night and they sleep during the day. And they also discovered that everything is cost the same. Okay, everything, the value of everything is same. Like in 1 rupee you will get 1 kg of everything. So that's why the disciple stayed in this city because he wanted to eat so much things. He was fond of eating, so he stayed there. On the other hand, the guru left because he knew that something is going to happen in this city which may create problem for them. Okay, so in the previous video we have learned that how the merchant got punished by the king because the thing as you all know, the merchant's wall fell and a man died, and then the merchant said that it is not my fault, it is the fault of the bricklayer. ईंटें बनाने वाले की फॉल्ट है, फिर ईंटें बनाने वाला कहता है, दीवार बनाने वाला कहता है कि मेरी फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट जो है वो वुमेन की है जो अप डाउन कर रही थी जिसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। और फिर वो वुमेन कहती है कि मेरी फॉल्ट नहीं है, तो सोनार की फॉल्ट है जो मुझे बार बार बुला रहा था एंड आई हैव टू गो देयर। सो इसके बाद करते करते सोनार फाइनली बताता है कि मैं ऑर्डर पूरा कर रहा था मर्चेंट का ही जिसकी दीवार टूटी है। तो ये पूरा सर्कल होता है और फिर से कहानी घूम फिर के मर्चेंट के पास ही आ जाती है। ओके, सो वी विल कंटिन्यू द स्टोरी फ्रॉम देयर। ओके, so merchant arrived. The king questioned him, "What's your name?" So this we have already completed. No need of repeating it again. Let's come to the story where the merchant was called once again. Okay. So लास्ट पैराग्राफ जो हमने कल पढ़ा था उस पर हमने ये देखा कि गोल्डस्मिथ मर्चेंट का नाम लेता है एंड हु इज़ द ओरिजिनल ओनर ऑफ द फॉलन वॉल। सो नाउ जस्टिस जो है वो दोबारा से सर्कल होके फिर से उसके सर पे आ जाता है। बट मर्चेंट कहता है कि सर, किंग से कहता है दैट किंग इट इज़ द वॉल वॉज मेड ड्यूरिंग माई फादर्स टाइम, और मेरे पापा तो अब हैं भी नहीं, ही इज़ नो मोर, ही इज़ डेड एंड आई एम इनोसेंट। तो आगे हम देखते हैं कि क्या होता है इस स्टोरी में। But the king consulted his minister and ruled decisively, "It's true that your father is the true murderer. He is dead. But somebody must be punished in his place. You have inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. You must die." सो मिनिस्टर कहता है कि सॉरी मर्चेंट कहता है कि दीवार तो मेरे पापा के टाइम पे बनी थी और मेरे पापा तो ऑलरेडी हिज नो मोर, उनकी डेथ हो चुकी है, तो मुझे आप छोड़ दीजिए, मैं निर्दोष हूँ, आई एम इनोसेंट, प्लीज़ लीव मी। बट किंग अपने मिनिस्टर्स के साथ डिस्कशन करता है और फैसला सुनाता है कि हाँ ठीक है, योर फादर वॉज गिल्टी, तुम्हारे पापा की वजह से ये दीवार उसके ऊपर गिरती है। बट जैसे कि तुमने अपने फादर की सारी चीज़ें इनहेरिट की है, इनहेरिट मीन्स विरासत में मिलना, तो जैसे तुमने अपने पापा का घर पाया है, उनकी प्रॉपर्टीज़ पाई है, उनका वेल्थ पाया है, तो उस तरीके से तुम्हें अपने पापा के किए हुए कर्मों का सज़ा भी मिलनी चाहिए। तो उनके पापों की सज़ा भी तुम्हें ही मिलेगी और किसी ना किसी को तो डेथ होगी ही, क्योंकि मुझे तो पहले ही पता था कि तुम ही वो इंसान हो, पहली नज़र में मैंने देख लिया था। किंग ऐसा कहता है मर्चेंट से कि मुझे तो पहले से पता था कि तुम ही हो कल्प्रिट, तुम्हारे ही ये सब किया जा रहा है। एंड ही ऑर्डर्ड a new stake
to be made ready for the execution. As the servants sharpened the stake and got ready for the final imparting of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king's common sense, the king too worried about it. Okay, सो ये डिसाइड हुआ कि अब मर्चेंट को ही सज़ा मिलने वाली है। उसके लिए मर्चेंट को सज़ा देने के लिए एक स्टेक बनाया गया, सूली बनाई गई और उसको अच्छे से शार्प किया गया, उसको अच्छे से मर्चेंट के लिए तैयार किया गया। लेकिन जब मर्चेंट को वहाँ पे उसके सर्वेंट्स लोग ले जाने लगे सूली चढ़ाने के लिए, देन दे फाउंड दैट द इट वॉज टू बिग। स्टेक जो था वो मर्चेंट के हिसाब से, उसके साइज़ के हिसाब से काफ़ी बड़ा था और मर्चेंट उसके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा पतला आया था, तो वो उसमें आसानी से फिट नहीं हो रहा था। वो उसका मे बी नेक और हैंड स्लिप कर जा रहा हो उसमें से। ओके, सो मिनिस्टर ये बातें किंग को बताता है और किंग सोचता है कि अब क्या करना चाहिए। सो किंग सेज, व्हाट शैल वी डू, ही सेड, व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड वाज टू फाइंड अ मैन fat enough to fit for the stake. The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. ओके, सो एक बहुत ही गंदा डिसीजन किंग लेता है। किंग कहता है, ओके मिनिस्टर बहुत पतला है स्टेक के लिए, सूली के लिए, तो क्या करो, हमें क्या करना है कि हमें एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो कि उस स्टेक पे, उस सूली पे आसानी से फिट हो जाए। व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन इज दिस? मीन्स एनीबडी हु इज फैट इज लाइक क्रिमिनल। सो जैसा कि हम जानते हैं, लाइक मिनिस्टर्स एंड किंग्स एवरीबडी इज फूल। सो किंग का ऑर्डर तो ऑर्डर है, सारे लोग टाउन में खोजने के लिए निकल जाते हैं ऐसे इंसान को जो कि काफ़ी ज़्यादा मोटा हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्थी हो। तो सर्वेंट्स की निगाहें उसी डिसिपल पे आती है जो गुरु अब के साथ शिष्य आता है, द डिसिपल जिसको गुरु ने पहले ही वॉर्न किया था। अब वो खा पी के इतना ज़्यादा मोटा हो गया है बिकॉज फॉर मंथ्स ही हैड ईटेड बनानास, राइस एंड वीट्स एंड घी। तो अभी वो काफ़ी ज़्यादा मोटा है और सूली पे उसका साइज फिट हो जाएगा, तो उसको पकड़ लिया जाता है। ओके, what have I done wrong? I am innocent. I am innocent. I am sannyasi, he cried. That may be true, but it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake. They said, carried him to the place of execution. He remembered his wise guru's word. This city, this is a city of fools. You don't know. What will they do next? While he was waiting for that, he prayed to his Guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. The Guru saw everything in a vision. He had magic powers. He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. He arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape through love of food. सो डिसिप्लिन को मिनिस्टर्स के सर्वेंट्स पकड़ लेते हैं और डिसिप्लिन चिल्लाता रहता है कि डेट व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने क्या किया है, मैंने कौन सा क्राइम किया है, तुम लोग मुझे क्यों ले जा रहे हो। सो उसे ये रिप्लाई मिलता है कि ये ऑर्डर है, किंग की तरफ से ऑर्डर है कि मुझे हम लोगों को एक मोटे इंसान की ज़रूरत है जो कि स्टेक में फिट हो जाए और तुम उसके लिए एकदम सही हो। सो वो लोग उसे पैलेस में ले जाते हैं एग्जीक्यूशन करने के लिए, उसको मौत के घाट चढ़ाने के लिए, तो सूली पे चढ़ाने के लिए। तभी जो डिसिपल था, जो शिष्य था, उसको अपने गुरु के कहे हुए शब्द याद आते हैं। गुरु ने उसे पहले ही वार्न किया था कि दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स, ये बेवकूफ़ों की जगह है और यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। वो आगे क्या करेंगे तुम कभी भी नहीं जानते हो। सो अब वो अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था, शिष्य जो अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था, और वो गुरु से अपने मन में प्रार्थना करता है, हार्ट में प्रार्थना करता है कि गुरु आप जहाँ कहीं भी हो, आप मुझे बचा लो, मैं बहुत ही प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। तो जैसा कि आप जानते हो, गुरु इज़ लाइक हैविंग अ सेंट, उनके पास मैजिकल पावर होती है, उनके पास विजन होता है, वो भविष्य देख सकते हैं। लेकिन फील तो गुरु को ये फील हो जाता है कि उसका शिष्य जो है वो किसी प्रॉब्लम में है और वो वहाँ पे अपने डिसिपल को बचाने के लिए आ जाते हैं। और उन्हें ये सोच के बहुत ही ज़्यादा मतलब वो भी होता है कि लाइक
खाने के चक्कर में आज वो कितने ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गया। जस्ट अ डिज़ायर ऑफ फूड। शिष्य सिर्फ इसलिए रुका था ताकि वो काफ़ी ज़्यादा खा पी सके वहाँ पे, लेकिन इसकी वजह से आज उसकी जान जाने वाली है। ओके, सो फाइनली उसकी जान नहीं जाएगी, जैसा कि हम आप सब प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बिकॉज गुरु आ गए हैं, सो ही विल फाइंड सम वे टू गेट द डिसिपल आउट ऑफ दिस डेंजर। As soon as he arrived, तो यहाँ पे he का मतलब गुरु है, he scolded the disciple and told him something in a whisper. Then he went to the king and addressed him, O wisest of kings, who is the greater, the guru or the disciple? Of course the guru, no doubt about it. Why do you ask? Then put me to the stake first, put my disciple to the death after me. तो गुरु जो है वो शिष्य के पास आते हैं, और शिष्य के पास आते ही सबसे पहले तो उसको काफ़ी ज़्यादा स्कोल्ड करते हैं, मीन्स उसे काफ़ी ज़्यादा डांटते हैं और उसके कान में कुछ विस्पर करते हैं। विस्पर मीन्स लाइक टू टॉक इन अ वेरी लो साउंड, जब ऐसे बात करना कि सिर्फ दो लोग ही सुन सकें, लाइक यू नो व्हेन यू से समथिंग इन समबडीज ईयर, सो दैट थिंग इज विस्परिंग। वन एग्जाम्पल आई कैन से, जब कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम में चीटिंग करते हैं तो दे डू विस्परिंग फॉर आंसर्स। ओके, सो तो वो गुरु जो है वो किंग के पास जाता है और किंग से कहता है, यू आर वेरी वाइजेस्ट किंग, यू आर सो ग्रेट। और किंग से क्वेश्चन करता है कि मुझे ये बताओ कौन ज़्यादा बड़ा है, द गुरु और द डिसिपल, गुरु ज़्यादा बड़ा है कि शिष्य ज़्यादा बड़ा है? तो किंग कहता है, ऑफ कोर्स गुरु ज़्यादा बड़ा है, नो डाउट, उसके बारे में तो कोई शक ही नहीं है। सो किंग पूछता है कि तुम मुझे ऐसा क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, वाई आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन? सो गुरु कहते हैं उससे कि जैसा कि आप बता रहे हो मैं बड़ा हूँ, गुरु इज ग्रेटर देन द डिसिपल, सो मुझे आप पहले फांसी पे चढ़ाओ और मेरे डिसिपल को मेरे बाद। ओके, तो गुरु कहने लगता है किंग से कि पहले मुझे फांसी पे चढ़ना है, पहले मुझे क्रूसीफाई किया जाए, मुझे क्या बोलते हैं, लाइक ही वॉज इंसिस्टिंग हिम टू मेक हिम डाई फर्स्ट, और उसके बाद उसके डिसिपल को डाई किया जाए, उसके डिसिपल को मारा जाए। ओके, when the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first, you brought me here first, put me to death first, not him. So जब शिष्य ये बात सुनता है कि उसके गुरु कह रहे हैं कि पहले उसे मारे, तो वो समझ जाता है कि गुरु के मन में कुछ है, उसके गुरु के मन में कुछ अच्छा आइडिया चल रहा है, तो वो कहने लगता है कि नहीं नहीं, नो नो नो, यू हैव टू किल मी फर्स्ट, आप मुझे पहले मारो, क्योंकि आप मुझे यहाँ पे पहले लाए हो, तो आप मुझे पहले मारो, मेरे गुरु को नहीं। The guru and the disciple now got into a fight about who should go first. The king was puzzled by this behavior. He asked the guru, why do you want to die? We chose him because we needed a fat man for the stake. You shouldn't ask me such question. Put me to death first, replied the guru. So गुरु और शिष्य आपस में लड़ाई करने लगते हैं। They start fighting for dying. कितना ज़्यादा शॉकिंग है कि कोई मरने के लिए लड़ाई कर रहा है कि पहले मुझे मारो, पहले मुझे मारो। इट्स वेरी लाइक वेरी सरप्राइजिंग, इट्स वेरी यूनिक कंडीशन। सो ये सब देख के किंग और उसके मिनिस्टर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, काफ़ी पजल्ड हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो गुरु से पूछता है, किंग पूछता है गुरु से कि वाई डू यू वांट टू डाई, तुम क्यों मरना चाहते हो? मैंने तो तुम्हारे शिष्य को इसलिए पकड़ा क्योंकि वो मोटा था और मुझे मोटे इंसान की ज़रूरत है स्टेक के लिए। सो यू स्टूडेंट आस्क मी सच क्वेश्चन। गुरु कहता है कि तुम मुझसे ये सब क्वेश्चन मत करो, मुझे पहले मार दो, मुझे पहले स्टेक पे ले जाके मुझे पहले किल कर दो। Why? There is mystery here. A wise man, you must make me understand. So king उससे कहता है कि गुरु, why do you want to die? इसके पीछे ज़रूर कुछ राज है। आप तो wise man हो, you are very intelligent person, you are a सन्यासी, you are a guru. आप मुझे बताओ कि ये what is the problem going on? ये क्या मसला है? So will you promise to put me death if I'll tell you? Asked the guru. The king gave him his solemn word. The guru took him aside out of the servants' earshot and whispered to him, do you know why we want to die right now? The two of us? We have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. That stake is the stake of God of justice. It's new. It has never had criminal on it. Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country
and whoever goes next will be future minister of this country. We are sick of our ascetic life. It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. Now keep your word, my lord, and put us to death. Me first, remember. ओके, सो अभी आपको समझ में आया होगा व्हाट इज लाइक गोइंग ऑन, कहानी में क्या हो रहा है. सो जब किंग उससे पूछता है, इज देयर एनी मिस्ट्री गोइंग ऑन, क्या इसका रहस्य है, तुम लोग क्यों मरने के लिए लड़ाई कर रहे हो आपस में. सो गुरु कहता है कि आई विल टेल यू एवरीथिंग बट यू हैव टू प्रॉमिस मी कि तुम सारी बात जानने के बाद मुझे पहले मारोगे. यू विल किल मी फर्स्ट. तो वो कहता है ठीक है, आई विल डाई यू फर्स्ट, आई विल किल यू फर्स्ट. तो गुरु से बताता है, उसको दूर ले जाता है उसके सर्वेंट से और उसके कान में विस्पर करके धीरे धीरे आवाज़ में बोलता है दैट तुम्हें पता है कि हम दोनों क्यों मरने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, और वो भी पहले मरने के लिए. सो हम लोगों ने पूरी दुनिया घूमी है, हम लोग काफ़ी सारे प्लेसेस पे गए हैं, बट हमने कभी भी ऐसी सिटी को नहीं देखा और कभी भी ऐसे किंग को नहीं देखा जैसे कि आप. तो ये स्टेक जो है वो स्टेक गॉड ऑफ जस्टिस का है, ये जस्टिस के लिए स्टेक बना है. इट्स अ न्यू स्टेक, ये नया नया स्टेक है, एंड इट हैड नेवर क्रिमिनल, और इस पर किसी की जान आज तक नहीं गई है. तो जो भी इंसान इसमें पहले मरेगा वो वहाँ का फ्यूचर किंग बनेगा, और उसके बाद जो मरेगा सेकेंड पर्सन वो वहाँ का फ्यूचर मिनिस्टर बनेगा. तो गुरु बताता है दैट वी आर सिक ऑफ आवर एसिस्टिक लाइफ. जंगलों में घूम घूम के हम सब अपनी ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुके हैं, एंड नाउ वी वांट टू एंजॉय आवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर. और अगले जन्म में मैं चाहता हूँ कि मैं किंग और मिनिस्टर बनूँ. सो दैट्स वाई मैं पहले मरना चाहता हूँ और मेरे डिसिपल को आप बाद में मारिएगा, ताकि नेक्स्ट लाइफ में हम दोनों किंग और मिनिस्टर बन के एंजॉय कर सकें. सो आपने देखा कि हाउ द किंग गुरु इज मेकिंग फूल, इस तरीके से होता है. The king was now thrown into deep thought. He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. He needed time, so he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister. It's not right for us to give over the kingdom to others in next life. Let's go on the stake ourselves. We'll be reborn as king and minister again. Holy men do not tell lies, he said, and the minister agreed. सो जब गुरु की ये सारी बातें किंग सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाता है, एंड वो पोस्टपोन कर देता है डिसिपल की मौत को, अभी पोस्टपोन कर देता है और कहता है कि लेट्स डिसाइड टुमारो, हम जो भी करेंगे वो कल करेंगे, अभी के लिए मुझे कुछ सोचना है, सो इसको अभी पोस्टपोन कर देते हैं कल के लिए. सो फिर वो अपने मिनिस्टर को बुलाता है और अपने मिनिस्टर को सारी बातें बताता है और कहता है कि आई डोंट वांट टू सी, मैं नेक्स्ट लाइफ में किसी और को किंग और मिनिस्टर बनते नहीं देख सकता. मैं चाहता हूँ कि मैं ही किंग बनूँ और तुम ही मिनिस्टर बनो. सो व्हाट शुड वी डू? आई डोंट वांट टू बी समबडी एल्स इन द नेक्स्ट लाइफ. मुझे अगले जन्म में भी किंग बनना है और तुम चाहते हो कि तुम ही मिनिस्टर बने. अगर ऐसा है तो गुरु और शिष्य की जगह क्यों ना हम दोनों ही सूली पे चढ़ जाए. सो दैट थिंग इज गोइंग टू हैपन. और मिनिस्टर कहता है ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. लाइक दे आर बोथ वेंट ग्रीडी, दोनों के मन में लालच आ जाता है. सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, वेल वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट. व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, पुट हिम टू द डेथ फर्स्ट, देन द सेम टू द सेकंड मैन. Those are my orders. Don't make any mistake. The night the king and his minister went secretly to the prison, released the guru and disciple, disguised themselves as the two, and as arranged before with the loyal servants, were taken to the stake, promptly executed. So king ने अपने सर्वेंट्स को बुलाया और उनसे कहा कि मैं गुरु और शिष्य को कल भेजूंगा, और जो भी पहले आएगा सूली पे, जो भी पहले आएगा आप उसे पहले मारोगे, एंड जो नेक्स्ट आएगा आप उसे मारोगे. ये मेरे ऑर्डर्स एंड देयर विल बी नो कन्फ्यूजन. तो रात में क्या करते हैं किंग और मिनिस्टर, जाके प्रेजेंट में डिसिपल को, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो, गुरु और डिसिपल को छोड़ देते हैं और खुद गुरु और डिसिपल के जैसे डिस्गाइज हो जाते हैं, और अगले दिन सुबह उनकी दोनों को मार दिया जाता है. जैसा कि ये पहले से डिसाइड था कि जो भी पहले आए तो उसको पहले मारोगे, नेक्स्ट पर्सन को आप नेक्स्ट मारोगे. सो ये ऑलरेडी डिसाइडेड था और ऐसा ही होता है, किंग और मिनिस्टर को
मार दिया जाता है. So now let's see what is going to happen next. When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. They saw before them the dead bodies of the king and minister. The city was in confusion. So जब उनकी dead bodies को ले जाया गया था फेंकने के लिए ताकि उसको क्रोज और vultures खा सकें, तो लोगों ने जब उनके चेहरों को रिकग्नाइज किया तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए, काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गए, क्योंकि उन्होंने ये डिस्कवर किया दैट द बॉडीज आर ऑफ किंग्स एंड मिनिस्टर्स. किंग और मिनिस्टर की बॉडी थी ये, एंड द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन. All night they mourned and discussed the future of the kingdom. Some people suddenly thought of the Guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. We people need a king and a minister, said someone. Others agreed. They begged the Guru and the disciple to be their king and their minister. It didn't take many arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the Guru. They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all the old laws. जब लोगों को ये पता चला कि उनके राज का किंग और मिनिस्टर दोनों ही मर चुके हैं, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख भी होता है. पूरी रात वो मौन करते हैं, मतलब उस चीज़ को, उसका गम मनाते हैं, दोनों की मौत का गम मनाते हैं और डिस्कस करते हैं कि अब हमारे किंगडम का फ्यूचर क्या होगा. तो तभी कुछ लोगों के मन में आइडिया आता है कि वाई डोंट वी आस्क द गुरु एंड द डिसिपल. गुरु और डिसिपल से हम क्यों ना मिलकर बात करते हैं ताकि कुछ फ्यूचर के बारे में सोचा जा सके. सो गुरु और डिसिपल को ढूंढा जाता है और वो लोग जाने ही वाले होते हैं टाउन को छोड़ के धीरे से, विदाउट टेलिंग एनीबडी. वो बस टाउन छोड़ के जाने ही वाले थे, तभी उनको बुला लिया जाता है. एंड दे सेड कि हमें एक गुरु और हमें एक किंग और मिनिस्टर की ज़रूरत है, एंड हम चाहते हैं कि आप ही क्यों ना किंग और मिनिस्टर बन जाएं, बिकॉज यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट. आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तभी आप ही की वजह से हम फ्री हो पाए हैं ये मूर्ख किंग और मिनिस्टर से. जो डिसिपल था, जो शिष्य था, उसको मनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा. परसुएड मीन्स लाइक मनाना किसी को, उसको परसुएड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करनी पड़ी. बट द गुरु वॉज टेकिंग लॉन्गर टाइम टू परसुएड. गुरु को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, because Guru wanted to have a simple life in a forest. बट फाइनली गुरु भी एग्री कर जाते हैं और ये वो एक कंडीशन रखते हैं कि मैं तभी किंग यहाँ का बनूंगा जब आप मुझे सारे पुराने लॉज को चेंज करने दो. सबसे पहले तो गुरु ऑफ कोर्स दिन और रात वाला चेंज करेगा, बिकॉज दिस इज लाइक ऐसा अनइमेजिनेबल थिंग है कि आप रात में काम करो, दिन में सो. So from then on, night would be night and day would be day, and you could get nothing for a to do. It became like any other place. So जब किंग और उसका डिसिपल मिनिस्टर बन जाते हैं, सो दिन को रात दोबारा कर देते हैं और रात को दिन दोबारा कर देते हैं. और अनफॉर्चुनेटली अब एक डुडू में हर चीज़ नहीं मिलेगा. यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा मनी फॉर अदर थिंग्स. यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा मनी. ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि आप 40 रुपीज़ लीटर मिल्क भी लाओ और 40 रुपीज़ kg आप पनीर भी ले आओ. तो ऐसा नहीं हो सकता ना, बट ऐसा वहाँ पे होता था. सो दिस स्टोरी इज एक्चुअली रिटन बाय, इट्स अ कन्नड़ फोक टेक. कन्नड़ मीन्स कनाडा है ना. आई एम नॉट सीइंग कैनेडा, कर्नाटक. सो कर्नाटक का ही ये कन्नड़ फोक टेक है. फोक टेल का मतलब होता है जो स्टोरी लोकल लेवल पे लोगों को सुनाई जाए, द स्टोरी विच इज टोल्ड टू अमंग लोकल पीपल. एंड दिस स्टोरी वॉज फ्रॉम A.K. रामानुजन. ओके, फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया. सो A.K. रामानुजन की ये कहानी है. ये हिंदी में भी ये कहानी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई है. एंड इन स्टार्टिंग यू रिमेंबर डे बिफोर यस्टरडे मैंने आपसे कहा था कि दैट माई फादर यूज टू टेल लाइन्स ऑफ दिस लाइन. सो इन हिंदी दिस स्टोरी इज फेमस एज अंधेर नगरी. अंधेर नगरी. वाई अंधेर नगरी? बिकॉज यहाँ पे रात में लोग काम करते हैं. सो देयर वॉज वन फेमस डायलॉग विच वॉज आई वुड लाइक टू शेयर विद यू. अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी एंड टका शेर खाजा. सो अंधेर नगरी मीन्स द प्लेस वेयर पीपल वर्क एट नाइट, जैसा कि स्टोरी में है. एंड चौपट राजा मीन्स अ फुलिश किंग, एंड टका शेर भाजी, टका शेर खाजा मीन्स
फॉर 1 penny फॉर 1 डूडू, और 1 रुपये में आपको भाजी मीन्स वेजिटेबल भी मिल जाएगी और खाजा मीन्स स्वीट्स भी मिल जाएगा. सो दिस इज़ वेरी फेमस थिंग. माई फादर यूज टू टेल मी व्हेन आई वाज किड. तो मैंने तो ये स्टोरी भी नहीं पढ़ी थी, बट व्हेन आई रेड द स्टोरी आई अंडरस्टूड दैट माई फादर वाज लाइक टॉकिंग अबाउट दिस स्टोरी ओनली. सो आई होप इस स्टोरी को आपने एंजॉय किया. एंड दिस स्टोरी इज़ नॉट अबाउट ओनली एंजॉइंग. इट वॉज अ वेरी ह्यूमरस स्टोरी. काफ़ी ज़्यादा ह्यूमर था स्टोरी में, मीन्स फन था. बट दिस स्टोरी ऑल्सो टेल्स इम्पॉर्टेंट लेसन्स ऑफ लाइफ. ओके, and lesson was greed, lalach. Okay, if you are greedy then it will not take you to the good future. लालच आपको सही राह पे नहीं ले जाती. सो जैसा कि हमने एग्जाम्पल देखा, डिसिपल जो था, जो शिष्य था, ही बिकेम ग्रेडी. उसे ज़्यादा खाना खाना था और ज़्यादा खाने के चक्कर में उसे अपनी जान गंवानी पड़ सकती थी. एंड किंग और मिनिस्टर भी ग्रीडी हो गए, वो भी लालची हो गए और उन्हें अपनी जान देनी पड़ी. So that's why greed can take your lives, and other things are that foolish people are so unpredictable. Okay, we have to keep ourselves away from foolish people. Ab you do not know who are foolish, so it's better not to argue with anyone whom you do not have understanding. So जो आपकी बातें नहीं समझता, आपको उससे आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं. You don't have to do a debate with somebody who is not getting your points. Okay, so हर किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है. We have to be like our own understanding. This is a wonderful story. काफ़ी अच्छी स्टोरी थी. आई हैव ऑल्सो enjoyed a lot telling this story. I hope you have also enjoyed. So I will ask you to do all these questions. यहाँ पे जितने भी questions हैं, 6 questions हैं, जिसमें से 3 और 4 तो we have already done, and remaining आप लोग कर लोगे. And make a proper notes of it so that you can be ready for your examinations of half yearly and as well as finals. Okay, so that's it for today. I hope you enjoyed this wonderful story. Please watch this video once again. Watch all 3 videos for more understanding, and as always comment down your names for your attendance. Thank you so much. Take care of yourselves.